Hi, myself Mohammad Zaid Khan. I am from Bikaner, Rajasthan, and at present I am in Kota. I am working. I am working as a faculty member of mathematics from Studiewala, and at present I am teaching students of mathematics who are the JEE and JEE, IIT JEE advanced and main aspirants. They are studying in my coaching institute. They are very talented students, and they are the aspirants of to get selected in IIT JEE examination. So for that one, I am teaching. I have been teaching since 4 years, from 2019 to 2022. I dedicatedly work on those students. My coaching institute is at Dadlabadi, and they are studying on a very daily basis, and they are very talented, and they are going to be selected. This is their main important target, to select in IIT JEE Main examination. Since I have completed my BE in electrical engineering in 2009 from University of Rajasthan, Jaipur, and with honors marks. After that, I pursued Masters of Technology in Power System in 2013 from Rajasthan Technical University, Kota. So with honors marks, and I have been topper of the Rajasthan Technical University in 2013 also. So after that, I initiated my project on as a name Zenith Academy, where I worked with my own institute. I was the CEO and main faculty of mathematics at my Zenith Academy, and in that academy I prepared the students for IIT JEE Main examination, where the aspirants got selected in IIT JEE Main examination. My favorite student is Sharad Dadich. He is presently in IIT Guwahati, and he got 1123 rank in IIT JEE Mains, and now at present he is pursuing PhD in civil engineering from IIT Guwahati. So from 2013 and to 2022, I have taught near about 2,000 students. So they are very talented, and most of the students are pursuing engineering, and these students are very enthusiastic about the subject of mathematics. So these students are working with me, and in that case, when they have to got select for IIT JEE Main examination, because I did preparation for them and taught them how to tackle all the questions of mathematics by the level of IIT JEE Main examination. So for that one, I need to let me explain that today I would like to introduce a mathematical subject in which I am going to take a topic of quadratic equation, in which I would like to explain as a demo in this lecture. So let me start a quadratic equation. So guys, overall I have got 10 years of teaching experience as a faculty of mathematics for the IIT JEE Main examination. So I prepared the students with all these challenges that I have gone through in mathematical subject, for which we have the capability, we have to tackle all the capability to tackle all these questions of IIT JEE Main examination. So for that, we need to start with quadratic equation. So let's start quadratic equation today. Quadratic equation. So basically, first of all, we have to let me explain that how to tackle all these quadratic equations. Basically, first of all, we have to go through with the fundamental equations. What is a quadratic equation? So the fundamental equation, general equation. What is the general equation of quadratic? Can be expressed as ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is a basic equation of quadratic.
It means the degree, if is equals to 2, it means it's a quadratic equation, quadratic polynomial. It would be a quadratic polynomial. क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की के रूट्स होते हैं उतनी ही उसकी डिग्री होगी, या जितनी डिग्री होती है जिस इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यानी कि इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियल रूट्स हों, वो इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उसमें इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी ली है। वेयर A, B and C are the constants नहीं है। So where A, B, C are the constants. So let me explain that how to tackle with ax square plus bx plus c is equals to 0. So basically क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, let me explain this is इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 by a on both sides. So दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? a का डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन में। तो यानी कि आप इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पूरी टर्म का मैं डिवाइड कर देता हूँ a से, और 0 को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ a से, है ना। हमने ऐसा क्यों किया है? हमने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि हमें ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाली वो किस में मिल जाए? एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मिल जाए, यानी कि विदाउट एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो 1 रहेगा। उसको 1 a को 1 बनाने के लिए हमने a का डिवाइड किया है। सो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब इस फॉर्म को आपको चेंज करना है किसमें? टू गेट दी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ मैनिपुलेटिंग एक्सप्रेशन लानी होगी। मैनिपुलेटिंग एक्सप्रेशन का मतलब है यू हैव टू ऐड, वी आर एडिंग बाय एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेट मी गिवन इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं 2 नंबर इक्वेशन दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? b अपॉन 2a होल स्क्वायर का बोथ साइड्स में क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा। अब ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इस c अपॉन a को उस जगह ट्रांसपोज कर दूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, एक ही बात है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस जगह इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास? इक्वेशन b स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या बचा? 2a एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2c ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर था ना, तो 2a स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 4c। this would become b। मैंने क्या किया इधर?
बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ये किया है मैंने। तो अब जब मैं नेक्स्ट इक्वेशन में आऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4a या 4a स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, 4ac। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्वेशन x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं रूट इस तरफ लगा दूंगा। जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा रूट को, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को मैं हटा दूंगा, हटाते ही मेरे पास यहाँ लग जाएगी एक्सप्रेशन आएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब मैं इस b अपॉन 2a को उधर शिफ्ट कर दूंगा, x प्लस b अपॉन 2a हट जाएगा यहाँ से, ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, आइदर ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट स्मॉलर देन 0 होगा। स्मॉलर देन 0 होगा, इस मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस में आ जाएगी। तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्सप्रेशन आएगी मेरे पास, ये आएगी x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम हो गई, लेकिन कहाँ डिफरेंस आया, इस प्लस में और इस माइनस में। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट रूट्स हैं। तो मैं इसको मान लीजिए कह देता हूँ x1, इसको कह देता हूँ x2। अब ये जो x1 है, लेट मी एक्सप्लेन दैट, इसको मैं मान लीजिए अल्फ़ा कहता हूँ, और इस x2 है, इसको मैं कह देता हूँ बीटा। ठीक है, तो मुझे दो रूट्स मिल गए, अल्फ़ा और बीटा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें दो रूट्स मिले। अब इन रूट्स को आपको सॉल्व करना है, तो हाउ टू सॉल्व ऑल दीज रूट्स। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अब क्या करना है आपको, इन रूट्स को इधर लिख लेते हैं। रूट शैल बी अल्फा कॉमा बीटा। सो व्हेन वी आर एडिंग टू रूट्स, जब हम दो रूट्स को ऐड कर दें तो क्या होगा, और जब दो रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। When we are adding two roots, it means we are adding alpha plus beta. What will be the result? Result क्या होगा, पहले का क्या है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस फिर माइनस बी अपॉन 2a माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो इट विल गेट कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन 2a। इट मीन्स इट विल बिकम माइनस b अपॉन a। यानी कि जब हम दो रूट्स को ऐड कर देते हैं तब हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, माइनस b अपॉन a। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। This would be our first expression. Secondly, जब हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ रूट्स, तब क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/2a तो अपने पास कॉमन आ गया, तो 1/2a अपन साइड में ले लेते हैं, यानी कि 1/2a का होल स्क्वायर हो गया ये एक तरह से। ठीक है, तो अब ये बची एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a प्लस बी a माइनस बी, देयरफॉर कितना हो जाएगा 1/4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस का, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा। ब्रैकेट खुलते ही क्या होगा, एज इट इज़ जो टर्म्स है वो हमें मिल जाएंगी, माइनस आते ही, लेकिन वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या होगा, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी, और चेंज होती क्या होगा, हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इस प्रकार है, अल्फा इंटू बीटा विल बी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विल बी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा c अपॉन a। तो दैट्स वाई हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा विल बिकम c अपॉन a। सो दिस इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन। सो वी आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सो हम कह सकते हैं कि अब जब दो रूट्स आपने मल्टीप्लाई किए, दो रूट्स ऐड किए, तब क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसमें हम इस एग्जांपल हमारा ये है इलस्ट्रेशन 1। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, लेट अस टेक टू रूट्स, दो रूट्स ले लेते हैं हम। उसमें आपको c अपॉन a कितना रहेगा और माइनस b अपॉन a कितना रहेगा, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टर्म्स में होंगी, इक्वल्स टू 0 की टर्म्स में होंगी। तो उसी तरह से मैं लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या होंगे इसके, और जब रूट्स निकल जाएंगे तो उनका नेचर क्या रहेगा। नेचर क्या मतलब क्या हुआ, क्या वो रियल रूट्स होंगे या वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये पता लगाना है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिया हमने। इसमें सेम वही तरीका है, अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी। अब a b c कितना है, a आपके पास आ गया 1, b कितना है आपके पास 7, c कितना है आपके पास 3। ठीक है, माइनस b का मतलब माइनस 7 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c कितना है 3 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7 प्लस अंडर रूट 4 3 12, 49 में से 12 के कितने बचे 7 और 3 37। तो यहाँ आ जाएगा 37 अपॉन 2। तो अंडर रूट 37 कितना हुआ 6 6 से 36 यानी 6 पॉइंट के आसपास आएगा लगभग। तो यहाँ अपन इसको अंडर रूट 37 ही लेके चलेंगे। तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 7 प्लस अंडर रूट 37 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद बीटा निकालेंगे। बीटा निकालने का वही तरीका है,
बीटा निकालने का क्या तरीका है, बीटा विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -7 माइनस अंडर रूट 37/2। ठीक है, तो रूट्स निकल गए, हमें रूट्स मिल गए। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे इमेजिनरी। नेचर ऑफ रूट्स में जो पहला रूट है अल्फ़ा, वो क्या रहेगा, रियल रूट। वो क्या है, -7 प्लस अंडर रूट 37/2 रियल रूट रहेगा। और बीटा क्या रहेगा, बीटा विल बी इक्वल्स टू अगेन रियल रूट, ये भी रियल रूट है, तो इट मीन्स क्या होगा, -7 माइनस अंडर रूट 37/2। यानी कि लगभग अगर हम कहेंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी आती है, 6 के आसपास ये आएगी वैल्यू, 6.5 के आसपास, 6.3 6.1 के आसपास आएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, स्मॉलर देन 0। ठीक है, बीटा क्या रहेगा, बीटा भी स्मॉलर देन 0। तो इट मीन्स क्या हुआ, नंबर लाइन पे जब हम देखते हैं इसको 0 यानी कि 6 है तो माइनस यानी 1/2.5 के आसपास है, तो माइनस का 0.5, ये आ गया प्लस का 0.5। और ये कितना आएगा, -6 और -7 कितना हुआ, -13, -13/2 कितना हुआ, -13/2 कितना हुआ, 2 6 12, तो माइनस का 6, तो लगभग माइनस का 6 इधर आएगा, इधर प्लस का 6 आएगा। तो हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू इसके आसपास आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू इधर आएगी, -7 प्लस अंडर रूट 37/2, और -6 की कितनी, -6 की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -7 माइनस अंडर रूट 37/2। तो आप देख सकते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू इसके आसपास आएगी और बीटा की वैल्यू इसके आसपास आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करते हैं, उनके रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालने के बाद उनको किस तरह से ऐड किया जाता है और उनके इमेजिनरी और रियल रूट्स का नेचर कैसे पता किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसके बाद का लेक्चर लेके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।